Hi all, welcome again. Okay, so yes, in the yesterday's session we have covered a few important t- terminologies, right, surrounding to the testing. Okay, so we have covered few important topics surrounding to the testing phase, right? And within a particular testing phase we have like different terminals that we have covered. First one we have covered, that is the use case. In a single line it describes the requirement, client requirement, right? And for use case basically there are three parameters. One is actor, that is the end user. Action, the step performed by the particular user. And the outcome, right? Once we perform a particular action on the application, right, there will be a outcome. So for surrounding to this we have taken one example of requirement one. As a end user I should able to log in the Gmail application with a valid username and password. Okay, so in this scenario I'll be the actor, right, who will be performing actions, certain actions in order to log in the application. And what will be the outcome or output? That is, I am able to log in that particular application successfully, right? So this one is the use case. Surrounding to this use case we can derive the test scenario, right? So basically test scenario describes what to be tested, right? And from the above use case we have one test scenario, that is login functionality need to be tested, right? That one we scenario we have. And against this scenario, in order to check the functionality flow, we can have multiple test cases, right? So basically your test case defines what to be tested, sorry, how to be tested. What to be tested covered under your test scenario, and based on that we are going to perform different testings, right? So how to be tested, that is defined under your test case. So test case is nothing but your step-by-step approach to test the functionality of particular application. Likewise we have derived a multiple number of test cases, right? And for particular test case creation we need some test data, right? So for that purpose we are going to implement that different techniques which we have covered in the previous sessions, such as input domain testing, which involves your boundary value analysis, equivalence class partitioning, and apart from that straight transition, error guessing, right? Then decision table, that sort of techniques we are going to implement for the data creation. Okay, test data creation, yeah. Okay, then fourth important terminology we have covered, that is the test suite. Test suite is nothing but the grouping of your particular similar sort of test cases, right? So yeah, so what kind of test suite we can have within our project? So we can have smoke sanity suite, right? Then we can have regression suite, functional suite, non-functional test suite. Likewise, we can have a similar sort of test cases group into the document, and that one is called as test suite, right? Okay, so yeah, up till here we have derive multiple number of test cases based on your requirement, right? So basically our team stands for the requirement traceability matrix, right? It's a mapping in between your requirement and test case. So within your RTM you'll be having one requirement ID, its description. Also we can include the test scenario, its ID, the number of test cases we have written for particular requirement, right? And once we done with the execution part, then we can update the status as well. Like we have written 4 test cases. Out of that, test case 1 2 is pass, and test case 3 4 is fail. Likewise we can update that RTM document later on as well. Okay, fine. And apart from this, the one of the important terminology we have covered, that is the test environment. Okay, when it comes to the testing phase, from the tester side we need a certain environment where that particular application, web application, needs to be tested, right? When it comes to the mobile application, so basically we are referring to the mobile, all right, mobile device. And when it comes to the web application, we are basically referring to the server, computer basically. Guys, please keep on mute. Okay. And it refers to the server, and most of the servers are on the cloud as well, and some of they are in local, in company network. Okay. And one of the there are few famous service providers, global service providers in the cloud domain. They are AWS, provided by Amazon,
Azure provided by Microsoft, and GCP provided by Google, right? These are the topics we have covered yesterday. Okay, so fine. Like today we'll be starting, yeah, for the, okay, let me share the screen. Yeah. So see, up till now, like in the last session, we have covered these points, like you what is use case, right? Then based on that, we have derived the test scenario, and based on that, we have derived the different test cases, right? Multiple test cases. Okay, fine. And then also we have code like few difference in between test use case, test case, then test scenario, test case, right? Okay, this part we have covered. Then test suite also, just now we have covered as well. Okay, what is test case? What are the different fields? You need to remember this from the document. Okay, and while performing the project, हमें ये चीजें आगे repeat होगी. Okay, then we have covered RTM and a sample document for it, right? Then the test environment, right? Okay, so during the testing phase, another important phase is during your STLC, software testing life cycle. Sorry, another important phase is the test execution. Up till here, like we have created our test case document, right? And against that test cases, we have mapped the RTM. We made a RTM document as well. Okay. So yeah, once we're done with the build deployment in the testing environment, then we'll be starting with the test execution. During this phase, team will carry out the testing based on the test plan, right? Previously, we already have the test plan as well as test case prepared, right? In the previous phases. Okay. So in order to start the test case execution, what will be the entry criteria for this? Like in order to start the execution, we need a test case document, we need a test data, and we need a test plan. So these are the entry criteria for starting a startup of your test execution phase, right? And what all are the activity, इसमें कौन कौन सी activities है जो as a tester हमें perform करनी है? These all are listed here. So few activities like test case execution based on the test planning. Okay, like हमारे जो भी स्कोप में है, इट विल बी मेंशनड इन योर टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट. लाइक हमें जीआई टेस्टिंग करनी है, फंक्शनल पे जाना है, नॉन फंक्शनल पे जाना है, जो भी टाइप ऑफ टेस्टिंग हमें करनी है, मैनुअल, ऑटोमेशन या मिक्स ऑफ बोथ. ओके, उसी तरह से हमें टेस्ट केस भी एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, राइट? देन जैसे हम टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो उसका जो भी स्टेटस है, लाइक टेस्ट केस इज पास, फेल. ओके, लाइक पास अगर जो भी एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड, हमें एक्सपेक्टेड था लाइक 2 + 2 4, एंड हमें एक्चुअली भी 2 + 2 4 मिल रहा है, राइट? इट मीन्स हमने जो भी टेस्ट केस राइट किए, दैट इज पास. ओके, एंड इन केस हमें एक्सपेक्टेड था 2 + 2 = एज पर रिक्वायरमेंट 4 होना चाहिए, and at actual में हमें मिल रहा है 2 + 2, that is a 5, right? In that scenario there is a difference in the final expected and actual output, right? So in that scenario we'll be failing that particular test case, right? Okay, and then another surrounding to this test case, we also have another status, but as of now just remember pass and fail. Okay, we are basically passing the test case or failing the test case depending upon the result. Okay, yeah. So documentation of test result, and okay, once we done with the execution, like we have written 100 number of test cases, and step by step we have executed all the, for example, 100 number of test cases. So we need to create a test result documentation where we need to list all the test cases and their statuses. Okay, once we done with that, like on a day-to-day basis, whatever defect we are getting, right, whatever the variation in the expected and actual result we are getting, that we are logging under the defect, right? And for failed test cases it is done. Okay, the failed test case is nothing but your defect. Okay, we are basically going to log that defect. All the blocked and failed test cases are assigned a bug id. Okay, जो भी टेस्ट केस आपका फेल होता है ना, उसका हम रिवैलिडेट करते हैं अपने इन पे, राइट? एंड लेटर ऑन उसी पर्टिकुलर डिफेक्ट को हम एक बग आईडी असाइन करते हैं, राइट? एंड सिमिलर बग आईडी हम रेफर करते हैं फॉर द फर्दर डॉक्यूमेंटेशन. ओके, एंड जैसे ही पर्टिकुलर बग डेवलपर को असाइन होता है, उनके एंड से फिक्स होता है, तो उसी
फिक्स बग पे हम जो भी टाइप ऑफ टेस्टिंग करते हैं दैट इज द रीटेस्टिंग, राइट। मतलब जो भी हमने टेस्ट केस राइट की थी प्रीवियसली वही सिमिलर सॉर्ट ऑफ टेस्ट केस हम वापस से रीटेस्ट कर रहे हैं, ओके, एंड चेक कर रहे हैं कि वेदर दैट बग इज एग्जिस्ट और नॉट। ओके, डिफेक्ट्स आर ट्रैक टिल क्लोजर। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था इन प्रीवियस सेशंस कि देर आर 4 रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल 4 फीचर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ये 4 फीचर पे डेवलपर ने ऑलरेडी डेवलपमेंट किया है, राइट। फ्रॉम टेस्टिंग साइड हमने फर्स्ट और सेकंड फीचर टेस्ट कर लिया, ओके है, एडिशन प्रॉपरली हो रहा है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपरली हो रहा है, बट जो फीचर है डिवीजन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए उसमें कुछ तो मतलब डिफेक्ट आ रहा है, उसमें कुछ तो वेरिएशन है। सो इन दैट सिनेरियो विल बी मार्किंग टू डिफरेंट वर्क, ओके, फॉर बोथ द फीचर्स, ओके। ओके, जैसे ही वो बग फिक्स होते हैं तो हमें वापस से रीटेस्ट करना है, राइट। आउट ऑफ दैट फॉर एग्जांपल थर्ड नंबर का जो फीचर था उसमें जो बग था वो तो फिक्स हो गया, राइट। सो दैट बग वी आर मेकिंग इट एज क्लोज रीटेस्ट करके, ओके। एंड फॉर एग्जांपल जो फोर्थ फीचर था उसमें जो हमने सेकंड बग रेज किया था दैट इज नॉट फिक्स, आपने बाद में भी रिटेस्ट किया फिर भी फिक्स नहीं, सो वापस से आपको रीअसाइन करना पड़ेगा टू द डेवलपर, राइट। वापस से वो फिक्स अप करेंगे, न्यू बिल्ड आएगा, अगेन वी आर डूइंग द रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन, ओके। जब तक पर्टिकुलर बग फिक्स नहीं होता, राइट, तब तक हमें ये साइकिल रिपीट करनी है, ओके। ठीक है। So during test execution, our main agenda is to execute all the test cases and make a test case result documentation. Along with, we need to report the defect. And once we reported the defect, and once they are fixed, we need to retest again, and we need to change their status to fix. Okay, that will have a complete life cycle for the bug in separate slide as well. Okay. जैसे ये फेज खत्म होता है ना तो इसमें डिलीवरेबल्स मतलब एक्चुअल आउटपुट क्या मिलेगा हमें, राइट। सो दिस प्रोवाइड्स द डिफेक्ट्स एंड टेस्ट केस एग्जीक्यूशन रिपोर्ट विथ कंप्लीटेड रिजल्ट, राइट। सो इसका आउटकम क्या रहेगा, जो भी टेस्ट केसेस हमने प्रीवियस फेज में राइट किए थे, राइट, उसी का एग्जीक्यूशन रिपोर्ट रहेगा, एज वेल एज जो भी डिफेक्ट हमें मिले हैं, राइट, उन सब का स्टेटस रहेगा। सो दिस विल बी द डेटा और आउटकम फ्रॉम द टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज। ओके, फाइन। टेस्ट एग्जीक्यूशन में हमने क्या क्या चीजें यूज में ली, टेस्ट केस डॉक्यूमेंट, टेस्ट डेटा एंड टेस्ट प्लान। एंड जैसे ही टेस्ट प्लान सॉरी टेस्ट एग्जीक्यूशन खत्म होता है तो हमारे पास एज इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन रिपोर्ट एंड बग समरी, राइट, ओके, और बग रिपोर्ट, फाइन। ओके, देखिए जो भी टेस्ट केस एग्जीक्यूशन है, राइट, फॉर दैट पर्टिकुलर फेज देयर आर फ्यू गाइडलाइंस लाइक टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले ना जो भी बिल्ड है, जो भी एप्लीकेशन है, वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपके क्यूए के एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होना चाहिए, राइट। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका अगर एप्लीकेशन आपके पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में डिप्लॉय नहीं है तो आप टेस्टिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। ओके, so yes, testing is done in QA environment, that is the quality assurance environment, okay. It is also called as test bed. टेस्ट एग्जीक्यूशन हैपेंस इन मल्टीपल साइकिल, यस करेक्ट, बिकॉज कोई भी बग हमें मिलता है, कोई भी चेंज होता है तो हमें बार बार वो साइकिल रिपीट करना पड़ता है, राइट। सो टेस्ट एग्जीक्यूशन कंसिस्ट एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केस एज वेल एज टेस्ट स्क्रिप्ट। अगर हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप मैनुअल प्लस ऑटोमेशन है तो दोनों टाइप के टेस्टिंग इन्वॉल्व रहते हैं, ओके। लाइकवाइज जो भी आपका हाइब्रिड अप्रोच है, ओनली आप मैनुअल टेस्ट केस मतलब टेस्ट मैनुअल टेस्टिंग पे फोकस कर रहे हो डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट, ओके, वहां पे दोनों भी टाइप का आपको कल्चर दिखेगा, लाइक मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेशन। ओके, वन मोमेंट। ओके, सो सी अभी हमने एक फेज कवर किया दैट इज द टेस्ट एग्जीक्यूशन, और टेस्ट एग्जीक्यूशन में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द डिफेक्ट और बग, राइट। जब भी हम टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं ना, सो उसके मेनली दो ही स्टेटस होते हैं, वन इज पास और अनदर वन इज फेल। पास है तो दैट इज गुड, ओके, बट फेल है तो इन दैट सिनेरियो हमें क्रॉस चेक करके पर्टिकुलर जो भी टेस्ट केस फेल हुए ना उसके अगेंस्ट एक बग आईडी जनरेट करना है या डिफेक्ट आईडी, ओके।
एंड वो हमें रिपोर्ट करना है टू द डेवलपर। अब अभी हम लेटर ऑन देखेंगे इसकी प्रोसेस क्या है, बट हर एक कंपनी में प्रोजेक्ट के हिसाब से है ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स फॉलो किए जाते हैं फॉर बग रिपोर्टिंग और डिफेक्ट रिपोर्टिंग। एनी मिसमैच फंक्शनलिटी फाउंड इन एप्लीकेशन इज नथिंग बट योर defect bug issue. Okay, during test execution, test engineer, okay, testers reporting mismatches as a defect to the developer through the template. ओके, सो कई प्रोजेक्ट्स में क्या होता है ना, या कई कंपनीज में जो भी रिपोर्टिंग होता है वो थ्रू एक्सेल होता है। ओके, बट इन केस कई कंपनीज में अगर टूल्स यूज किए जाते हैं ना, सो इन दैट सिनेरियो दिस आर द डिफरेंट टूल्स। तो इसमें जीरा आता है, सॉफ्टवेयर से एज अपना आप समझिए, जिसमें ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट होता है। बगजिला है, क्लियर क्वेस्ट है, ओके, क्वालिटी सेंटर है। ओके, सो वन ऑफ द फेमस आपने नाम फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज वेल एज बहुत सारी एक्टिविटी के लिए जीरा यूज होता है, देन क्वालिटी सेंटर। डिफरेंट डिफरेंट है, हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टूल रहेगा। आपको बस पर्टिकुलर टूल को एक्सप्लोर करना है, राइट। मोस्टली हम फर्स्टली तो एक्सेल में मेंटेन करते हैं, लेटर ऑन वहां से हम कॉपी पेस्ट करते हैं टू दैट पर्टिकुलर टूल। ओके, तो ये हो गया ऑन अ डिफेक्ट रिपोर्टिंग साइड, बट इसका एक्चुअल कंटेंट क्या होता है फॉर अ पर्टिकुलर डिफेक्ट रिपोर्ट, हमें वो देखना है थोड़ा इन अ डिटेल। ओके, सो उस पर फोकस करते हैं। जो भी हमने टेस्ट एग्जीक्यूशन किया, राइट, सो पर्टिकुलर ड्यूरिंग टेस्ट एग्जीक्यूशन हमें जो भी मिसमैच मिला ड्यूरिंग एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल बिहेवियर, उसी को हम एज अ डिफेक्ट करके रेज करते हैं। ओके, सो इसमें आपका डिफेक्ट आईडी रहेगा, दैट इज द बग आईडी, राइट, जैसे अभी हमने बात की, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से नंबर का बग है। देन डिफेक्ट डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन, कौन से मॉडल में है, क्या है, राइट, कि लॉगिन में है, रजिस्टर फंक्शनलिटी में मिला है, कहाँ पे मिला है, होम पेज पे मिला है, अबाउट अस पेज पे मिला है, कहाँ पे डिफेक्ट है पर्टिकुलरली, राइट। देन वर्जन, मतलब हमने कौन से बिल्ड नंबर पे उस पर्टिकुलर बग हमें मिला है, राइट। सो वर्जन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसका वर्जन अपडेट होता है, राइट। सिमिलर जो भी हमने पर्टिकुलर एप्लीकेशन के वर्जन पे एग्जीक्यूट किया है उसका वर्जन नंबर मेंशन होना चाहिए। देन स्टेप्स, जो भी स्टेप्स हम टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने के लिए या टेस्ट केस के लिए लिखते हैं, सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्टेप्स यहाँ पे होने चाहिए विथ स्क्रीनशॉट, मतलब जहाँ पे भी आपको मिसमैच दिख रहा है, राइट, पर्टिकुलर उस चीज का है ना स्क्रीनशॉट हमें कैप्चर करना है। ओके, फाइन। देन सेम चीज क्यों हमें स्क्रीनशॉट वगैरह कैप्चर करना है ना, क्योंकि सिमिलर सिनेरियो है ना, जो भी आपका डेवलपर है उनको रिप्रोड्यूस करना पड़ता है उनके एनवायरनमेंट में। ओके, तब उनको वो सिमिलर स्टेप्स वहां पे फॉलो करने पड़ते हैं। देन डेट ऑफ रेज, हमने डिफेक्ट या बग कब रेज किया है। देन रेफरेंस, हमने किस चीज के अगेंस्ट वो क्रॉस चेक किया है, जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, डिजाइन है, आपका जो भी है उस चीज का आपको क्या अटैच करना है, स्क्रीनशॉट अटैच करना है। ओके, मतलब पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट आपको मिसमैच मिला है। ओके, सो दैट डेवलपर को है ना क्लियरली अंडरस्टूड होगा कि हाँ, यस बॉस, दिस वन इज द करेक्ट डिफेक्ट। ओके, देन डिटेक्टेड बाय, जो भी पर्टिकुलर टेस्टर रहेगा और जिन्होंने भी बग रेज किए हैं, राइट, उनका नाम रहेगा। देन स्टेटस, ओके, इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर अप करते हैं इसको। स्टेटस ऑफ डिफेक्ट्स, इसमें न्यू होता है, ओपन, इन प्रोग्रेस, रिजेक्टेड, डिफर्ड, डुप्लीकेट, फिक्स, रीओपन एंड क्लोज। ओके, हम देखते हैं अभी। ओके, देन फिक्स बाय, कौन फिक्स बाय, विच डेवलपर फिक्स दिस बग। ओके, जिस भी डेवलपर ने फिक्स किया रहेगा ना उनका नाम रहेगा यहाँ पे। देन डेटा क्लोज, ओके, सो डेटा व्हेन डिफेक्ट इज क्लोज, सो पर्टिकुलर डिफेक्ट जब भी क्लोज होता है ना उसका पर्टिकुलर डेट रहेगा। देन सिवियरिटी एंड प्रायोरिटी, these are the two important parameters, okay, in case of your defect report। इस पे हम थोड़ा अलग से बात करते हैं। ओके, सिवियरिटी एंड प्रायोरिटी, फाइन। चलो, सो ये बेसिकली दिस इज द कंटेंट फॉर योर डिफेक्ट रिपोर्ट। इसके लिए एक्सेल टेम्पलेट ऑलरेडी क्रिएटेड है। जब भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, राइट, आई विल बी शेयरिंग दिस टेम्पलेट विथ यू। ओके, हमें सिर्फ उसमें डेटा फिलअप करते चलना है। ओके, चलो, फाइन। ओके, so yes, yeah, just now we discuss about the defect, right, how we can track the defect and what all are the field inside the defect report, right। ठीक है, चलो, उसमें हमने दो इंपॉर्टेंट लास्ट में है ना टर्मिनोलॉजीज देखी थी। वन इज द सिवियरिटी
एंड अनदर वन इज द प्रायोरिटी। ओके, अभी क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, करेक्ट। पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन में या मोबाइल एप्लीकेशन का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग का कोई एप्लीकेशन है जिसमें आप लॉगिन करके है ना आपके पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो या जो भी आपकी यूटिलिटी बिल वगैरह पे कर सकते हो। ओके, सो इन दिस सिनेरियो देखिए, ये एप्लीकेशन हम किसी क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए बना रहे हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल जब भी कस्टमर लॉगिन करेगा, एंड यूजर लॉगिन करेगा ना, अगर उसने करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड भी पुट अप किया है तो भी लॉगिन नहीं हो रहा है, राइट। सो इन दैट सिचुएशन ही विल बी फेसिंग प्रॉब्लम, right? He will not able to log into particular application. So in that scenario, जो भी ये इशू आ रहा है to the end user, that is nothing but the failure of our particular application, correct? but वही चीज अगर हम टेस्टिंग के एनवायरनमेंट में चेक कर रहे हैं, उसी को हम डिफेक्ट या बग कहते हैं, राइट। सो हमें ना उसकी प्रायोरिटी एंड सिवियरिटी डिसाइड करनी है। सो सिवियरिटी मींस आपका एप्लीकेशन का फ्लो ब्लॉक हो रहा है, आपका एप्लीकेशन का फ्लो ब्रेक हो रहा है, राइट, दैट कम्स अंडर योर सिवियरिटी। एंड प्रायोरिटी मींस हमें कितनी जल्दी ये पर्टिकुलर बग को फिक्स करना है, राइट, दैट वन इज द प्रायोरिटी। इसके बारे में और डिटेल बात करते हैं, इसके टाइप्स देख लेते हैं पहले। सिवियरिटी इज द ब्लॉकर, मतलब एप्लीकेशन कंप्लीटली ब्लॉक है, पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी कुछ भी नहीं चल रहा है। क्रिटिकल मतलब मेजर, जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटी है ना वो ब्रेक हो रही है, वर्क नहीं हो रही है, राइट। लाइक मेजर मतलब उससे थोड़ा बिलो रहेगा सिवियरिटी की, एप्लीकेशन में कुछ फंक्शनैलिटी है वो वर्क नहीं कर रही है। एंड माइनर मतलब इट लाइक इट्स अ वेरी लेस, छोटी फंक्शनैलिटी, राइट, जिससे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा ऑन अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, यूजर को ज्यादा प्रॉब्लम इशू फेस नहीं होगा। ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू द प्रायोरिटी हाई, मीडियम एंड लो, हमें कितनी जल्दी फिक्स करना है, उस चीज के लिए P1 प्रायोरिटी है, थोड़े मीडियम लेवल पे है तो P2 प्रायोरिटी है, एंड अगर ठीक है हम लेटर ऑन मतलब नेक्स्ट बिल्ड में भी इसको अपडेट कर सकते हैं, बग को फिक्स कर सकते हैं, इन दैट सिनेरियो प्रायोरिटी विल बी लो। ओके, इसी पे थोड़ा और डिटेल डिस्कस करते हैं गाइस। ओके, चलो। सो फर्स्ट वन पॉइंट इज द डिफेक्ट सिवियरिटी। ओके, सो इसी के नाम में है गाइस कि सिवियरिटी डिस्क्राइब्स द सीरियसनेस एंड हाउ मच इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस वर्कफ्लो। मतलब जो भी आप एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, जो भी एप्लीकेशन आप टेस्ट कर रहे हो, राइट, ड्यूरिंग टेस्टिंग अगर आपको पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी में ब्रेक मिलता है, पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी वर्क नहीं होती, राइट, सो उसकी वजह से एप्लीकेशन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, दैट कम्स अंडर योर सिवियरिटी। टेस्टर्स विल असाइन सिवियरिटी टू द डिफेक्ट, एज अ टेस्टर हम पर्टिकुलर डिफेक्ट को सिवियरिटी असाइन कर सकते हैं। सो जैसे हमने टाइप्स देखे थे, राइट, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। सो फर्स्ट वन इज ब्लॉकर, इसी को शो स्टॉपर भी कहते हैं, राइट। व्हाई? बिकॉज that this due to this defect nothing can be proceed further। okay, सिंपल, आपका जो भी एप्लीकेशन है, आपका मोबाइल एप्लीकेशन हो या वेब एप्लीकेशन हो, वो पूरा क्रैश हो रहा है, आप लॉग इन ही उसका काम नहीं कर रहा है, राइट। सो आप आगे के टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो क्या? नो, राइट। सो इन दैट सिनेरियो एप्लीकेशन की कंप्लीट फंक्शनैलिटी ब्लॉक है, इसीलिए पर्टिकुलर एप्लीकेशन की, सॉरी, डिफेक्ट की सिवियरिटी क्या रहेगी? ब्लॉकर और शो स्टॉपर, राइट, इसी को शो स्टॉपर बोलते हैं, एंड सिवियरिटी विल बी ब्लॉकर। सेम आपका एप्लीकेशन है, हम सिवियरिटी क्रिटिकल है कब बोलेंगे, राइट, द मेन फंक्शनलिटी और बेसिक फंक्शनलिटी इज नॉट वर्किंग। फॉर एग्जांपल, customer is not or end client is not able to transfer the fund via internet banking। फॉर एग्जाम्पल आपके इंटरनेट बैंकिंग का एप्लीकेशन है, आप लॉगिन तो कर पा रहे हो, राइट, बट आप मेनली क्या करते हो ड्यूरिंग लॉगिन, लाइक आफ्टर लॉगिन पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए करते हो, राइट, बट वही मेन फंक्शनलिटी नहीं चल रही, आप अभी लॉगिन कर पा रहे हो, ओके, दैट इज फाइन, अदर फंक्शनलिटी आप थोड़ा बहुत एक्सेस कर रहे हो, बट जो एक्चुअल एप्लीकेशन का मेन फंक्शनलिटी है, दैट इज द फंड ट्रांसफर, वही वर्क नहीं कर रही, राइट। इन दैट सिनेरियो दिस इज सिवियरिटी विल बी क्रिटिकल। ओके,
अनदर एग्जांपल, ऑर्डरिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑन ई कॉमर्स। हम किसी शॉपिंग वेबसाइट पे जा पा रहे हैं, लॉगिन भी कर रहे हैं, राइट, प्रोडक्ट भी चूज हो रहा है, बट उसको है ना हम परचेस नहीं कर पा रहे, राइट। सो इन दैट सिनेरियो दिस विल बी अ क्रिटिकल बग, राइट। And measure, it causes some undesirable behavior but feature function still function. So particular ये टाइप के severity में क्या होता है ना, आफ्टर मतलब फंक्शनलिटी वर्क कर रही है बट हमें कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर सेंडिंग ईमेल देर इज नो कंफर्मेशन मैसेज। हम जब भी ईमेल सेंड करते हैं, जब भी कुछ मैसेज सेंड करते हैं, तो हमें मैसेज आता है कि ईमेल हैज बीन सेंड, राइट। ओके, सो मेल तो आपका सेंड हो रहा है बट आपको कुछ मैसेज नहीं आ रहा है। और अनदर एग्जांपल, आप फेसबुक का लॉगिन कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन का लॉगिन कर रहे हैं ना, तो जैसे आप सॉरी रजिस्टर कर रहे हो, जैसे आप रजिस्टर करते हो ना, तो आपको एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओटीपी हैज बीन सेंड सक्सेसफुली, राइट। ओके, सो इन दैट सिनेरियो वो पर्टिकुलर अकाउंट तो क्रिएट होता है बट आपको एज ए इंड यूजर मैसेज नहीं मिलता, तो आप श्योर नहीं होते कि हम मेरा अकाउंट क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है, राइट। सो दिस वन कम्स अंडर द मेजर सिवेरिटी। एंड माइनर मीन्स इट वोंट कॉज एनी फंक्शनल ब्रेक, मतलब सिस्टम के फंक्शनलिटी में कुछ ऐसा ज्यादा चेंज नहीं होता, बस दीज आर दी लुक एंड फील, स्पेलिंग रिलेटेड, इमेज अलाइनमेंट रिलेटेड इश्यूज। ओके, so there are four type of severities. Fine. Okay. First one is blocker. It means we are not able to log into the application itself. Application is completely crashing. Critical. We are able to log into the application, but main functionality is not working. That one is the type of severity. Critical severity. Major. We are able to log in, we are also able to transfer the money. Okay, for example, in case of any application, your Paytm, right, you are able to log into the application, आपने पर्टिकुलर आपके फ्रेंड का मोबाइल नंबर भी, क्यूआर कोड भी स्कैन किया, आपने पेमेंट भी किया, बट आपको एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिला कि पेमेंट्स ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ है, बट आपका बैकएंड में तो ट्रांजेक्शन हो गया, बट एज ए इंड यूजर आपको नहीं पता, राइट। सो दैट वन, अगर उस टाइप का मैसेज आपको नहीं आता है, दैट वन कम्स अंडर योर मेजर सिवेरिटी। एंड माइनर मीन्स आपका स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है, लुक एंड फील में, ओके, अलाइनमेंट, उसका फंक्शनलिटी से ज्यादा एज सच कुछ कंसर्न नहीं है। सो इन दैट सिनेरियो योर सिवेरिटी विल बी माइनर, राइट। सो these आर द फोर टाइप्स: ब्लॉकर, क्रिटिकल, मेजर एंड माइनर। ओके, इसका सिंपल शॉर्ट फॉर्म है BCMM, राइट, ब्लॉकर, क्रिटिकल, मेजर, माइनर। फाइन। सो अभी तो हमने ऑन फंक्शनलिटी साइड डिस्कस किया कि यस, फंक्शनलिटी की वजह से कितना बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है, कितने एंड कस्टमर को डिफिकल्टी फेस हो सकती है, राइट। सो सेकंड टर्मिनोलॉजी है इसमें प्रायोरिटी, डिफेक्ट प्रायोरिटी। So जैसे defect severity describes how it is impacting the application. So in the other side, priority describes how important is to fix the defect. जो भी डिफेक्ट हम रेज कर रहे हैं ना, उसको कितनी जल्दी फिक्स करना इंपॉर्टेंट है, राइट। दैट कम्स अंडर द प्रायोरिटी. Testers can give the priority, but developers or product owners may change the priority because लाइक फ्रॉम कोडिंग साइड किसको ज्यादा नॉलेज रहेगा, आपके डेवलपर को, आपके सीनियर पर्सन को, राइट। इसीलिए वो इसकी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं, बट फ्रॉम द सिवियरिटी साइड इट शुड बी गिवन बाय द टेस्टर ओनली। ओके, डिफेक्ट प्रायोरिटी स्टेट द ऑर्डर इन विच डिफेक्ट शुड बी फिक्स। ओके, इससे हम प्रायोरिटी से हमें पता चलता है कि कितने जल्दी डिफेक्ट को फिक्स करना है। सो देयर आर थ्री डिफरेंट प्रायोरिटीज. हाई, it means this defect must be resolved immediately, right, as it is affecting the system severely and cannot proceed further until it is fixed. So इसका सिंपल मतलब है, अगर प्रायोरिटी हाई है तो उसको हमें ऑन टॉप प्रायोरिटी फिक्स करना है डिफेक्ट को, राइट। अगर प्रायोरिटी मीडियम है, सो इट कैन वेट अंटिल न्यू वर्जन और बिल्ड इज क्रिएटेड। अगर प्रायोरिटी मीडियम है पर्टिकुलर डिफेक्ट के लिए, तो हम नेक्स्ट वर्जन में इसको अपडेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, राइट। एंड अगर प्रायोरिटी लो है, तो इन दैट सिचुएशन इट कैन बी फिक्स इनटू लेटर रिलीज।
अभी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वर्जन इट मीन्स आपका जो भी साइकिल रहेगा राइट फॉर नंबर ऑफ बग फिक्सेस राइट, उसमें ये फिक्स हो जाएगा। एंड रिलीज मीन्स आपका जो फॉर एग्जांपल वाटरफॉल मॉडल या कोई एग्जिस्टिंग मॉडल है तो 3 मंथ में आपने डिसाइड किया कि आपको 1 मंथ में आउटपुट मतलब रिलीज देना है या 3 मंथ्स के बाद ही देना है, तो लाइकवाइज उसके बाद भी आप फिक्स कर सकते हैं अगर आपका बिल्कुल लो प्रायोरिटी बग है तो राइट। सो यस, अभी तक गाइज हमने है ना 2 टर्मिनोलॉजीज पे मेनली बात की, जो भी आपका डिफेक्ट था राइट। एंड डिफेक्ट टेम्पलेट में है ना 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, वन इज योर सिवेरिटी एंड अनदर वन इज प्रायोरिटी। सिवेरिटी कैन बी severity can be critical, sorry, severity can be blocker, then critical, then your major and minor, and priority can be high, medium, low. ओके, उसी के अक्रॉस कुछ यहाँ पे मैंने पॉपुलेट किए सिनेरियोस, हाई सिवेरिटी प्रायोरिटी, लो सिवेरिटी प्रायोरिटी, ओके, रिगार्डिंग टू डिफेक्ट्स। ओके, अभी देखिए ऑन अ सिवेरिटी साइड हाई, सिवेरिटी हाई इट मींस पर्टिकुलर एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है राइट, सिंपल, उसका फंक्शनलिटी नहीं चल रहा है। प्रायोरिटी हाई मीन्स हमें ये जल्दी से जल्दी ऑन अ टॉप प्रायोरिटी फिक्स करना है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, लॉगिन इज टेकिंग टू द ब्लैंक पेज। मतलब हम पर्टिकुलर फेसबुक या जीमेल कोई भी एप्लीकेशन को लॉगिन कर रहे हैं और हमें ब्लैंक पेज मिल रहा है राइट, या तो वो ओपन ही नहीं हो रहा है और ओपन हो रहा है तो कुछ अलग ही ब्लैंक ही पेज मिल रहा है राइट। सो इट इज आल्सो इम्पैक्टिंग बिजनेस एज वेल एज इट नीड्स टू बी फिक्स ऑन टॉप प्रायोरिटी। अभी सिमिलरली देखिए, ओके, हाई सिवियरिटी एंड लो प्रायोरिटी। ओके, अबाउट अस पेज है पर्टिकुलर वेबसाइट पे एंड इट इज गोइंग टू ब्लैंक पेज, सेम वेबसाइट है और उसका अबाउट अस पेज है राइट, एंड उस पर्टिकुलर अबाउट अस पेज पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वो ब्लैंक पेज जा रहा है, वहां पे कुछ भी डिटेल शो नहीं हो रहे। सो इन दिस सिचुएशन फंक्शनैलिटी ब्रेक हो रही है राइट, कंप्लीटली ब्रेक हो रही है। ओके, बट अबाउट अस पेज में पर्टिकुलर ब्रेक हो रही है, नॉट इन टू द मेन एरिया राइट। सो इन दैट सिचुएशन priority will be a low or medium so that it can be fixed later, right? Because we can, a developer can firstly fix the high priority bugs. Okay, once they're done with the high priority, then they can go for the low priority or medium priority and low priority likewise. Then on the severity side, severity is low means it is not breaking the functionality. Okay, let's see example, but still we need to fix it on priority. What is the example? After user login into the application, he can see home page, but there is a spelling mistake in the home page. कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है एंड पर्टिकुलर एप्लीकेशन का आपका मेन होम पेज है, ओके, वहां पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स है फ्रॉम द डेवलपर साइड राइट, ड्यू टू दिस स्पेलिंग मिस्टेक, बट वो आपके होम पेज पे ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो भी कोई बंदा आपके वेबसाइट को विजिट करेगा, मोबाइल एप्लीकेशन को विजिट करेगा ना, तो ऑन अ फर्स्ट पेज ही ओनली उसको दिख सकता है। सो उससे फंक्शनलिटी तो ब्रेक नहीं हो रही, इसीलिए इसकी सिवियरिटी लो है, बट इट नीड्स टू बी फिक्स ऑन टॉप प्रायोरिटी। व्हाई? बिकॉज इट्स इन मेन एरिया जहां पे मल्टीपल यूजर्स व्यू कर सकते हैं पर्टिकुलर पेज। ओके, अभी दोनों भी लो है, मतलब सिवियरिटी भी लो और प्रायोरिटी भी लो। इन दैट सिचुएशन यूजर ओपन अ कॉन्टैक्ट पेज, यूजर ने कॉन्टैक्ट पेज ओपन किया और वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है कुछ विद इन ईमेल आईडी और सम। ओके, सो it is not breaking the functionality and it is not that much urgent to fix quickly, right? इसीलिए हम उसको बाद में भी fix कर सकते हैं। So these are the 4 examples surrounding to the priority and severity. Fine. Okay. हम surrounding to this थोड़े और examples देख लेते हैं. Okay. So that you'll have a clear understanding. Severity simple meaning functionality break. प्रायोरिटी सिंपल मीनिंग हाउ सून वी नीड टू फिक्स, हमें कितने जल्दी फिक्स करना है इसको। ओके, सो यस, इसका एग्जांपल है देख लेते हैं। लो प्रायोरिटी लो सिवियरिटी मींस हम बाद में भी फिक्स कर सकते हैं एंड फंक्शनलिटी भी ब्रेक नहीं हो रहा है। अ स्पेलिंग मिस्टेक इन अ पेज नॉट फ्रिक्वेंटली व्यू बाय द यूजर। ओके, ऐसे पेज में स्पेलिंग मिस्टेक है जहां पे ज्यादातर यूजर नहीं जाता राइट,
मतलब आपका कोई फूटर में उसका लिंक है, आपका कुछ अबाउट सेशन में है, राइट। लाइकवाइज लो प्रायोरिटी हाई सिवेरिटी। लो प्रायोरिटी मीन्स हम बाद में भी फिक्स कर सकते हैं, बट हाई सिवेरिटी ओके, मतलब कहीं पे फंक्शनलिटी ब्रेक हो रही है। एप्लीकेशन क्रैशिंग इन सम कॉर्नर केसेस, राइट। मतलब आपका कोई मेन पेज तो नहीं है, बट फिर भी एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी ब्रेक हो रही है कहीं पे तो कॉर्नर केसेस पे। सो इट इज इम्पैक्टिंग बिजनेस, बट इट कैन बी फिक्स लेटर। High priority, low severity, right? So it is nothing but slight change in logo or color in a particular main page. Okay, आपके मेन पेज पे अगर कुछ ऐसे टाइपो मिस्टेक्स है, कुछ इमेजेस में वेरिएशन है कलर में वगैरह, तो इट शुड बी फिक्स ऑन हाई प्रायोरिटी बिकॉज वो मेन पेज पे है, बट इट इज नॉट ब्रेकिंग द फंक्शनलिटी, हेंस लो सिवेरिटी। Likewise, another example guys, high priority high severity, मतलब फंक्शनैलिटी भी ब्रेक हो रही है और हमें जल्दी से जल्दी ऑन अ टॉप प्रायोरिटी फिक्स करना है। इश्यूज विद फंक्शनैलिटी सिंपल। हाई सिवेरिटी लो प्रायोरिटी, राइट। हाई सिवेरिटी मीन्स ब्रेकिंग द फंक्शनैलिटी एंड लो प्रायोरिटी मीन्स मेन फंक्शनैलिटी रिलेटेड नहीं है। वेब पेज नॉट फाउंड इन यूजर क्लिक्स ऑन लिंक। ओके, मतलब यूजर कोई अगर लिंक पे क्लिक करता है तो पर्टिकुलर वेब पेज ओपन नहीं होता, बट इट इज इन सम कॉर्नर फुटर साइड कॉर्नर केसेस, नॉट ऑन द होम पेज। ओके, देन लो प्रायोरिटी लो सिविरिटी, अनदर एग्जांपल जैसे हमने टॉप पे देखा था, तो कॉस्मेटिक और स्पेलिंग रिलेटेड चेंजेस रहेंगे तो बोथ शुड बी लो। ओके, so yes, this is mainly on the priority and severity side. Any question guys on the priority severity? थोड़ा डिफरेंस समझा आपको? ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन भी एक देखने वाले हैं हम, बट ऑन अ थियोरेटिकल साइड थोड़ी क्लियरिटी मिली। एग्जाम्पल रिपीट करेंगे? हेलो, यस सर, एग्जाम्पल रिपीट करेंगे? हाँ श्योर श्योर, ओके। सिंपल, ये जो डायग्राम है ना आपके सामने, इसके इसी से हम समझते हैं हाई और लो। अब एज ऑफ नाउ इतना दो ही ध्यान रखिए। ओके, सिवेरिटी ब्रेकिंग दी एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी, प्रायोरिटी हमें कितने जल्दी फिक्स करना है। दोनों अगर हाई है इट मीन्स आपकी फंक्शनैलिटी भी ब्रेक हो रही है, ओके, एंड आपको जल्दी से जल्दी फिक्स भी करना है, राइट। सो लॉगिन इज टेकिंग टू द ब्लैंक पेज, मतलब आपने पेटीएम ओपन किया और आपका पेटीएम लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हो, और लॉगिन भी हो रहा है बट वाइट पेज दिख रहा है, ब्लैंक पेज आ रहा है। सो इन दैट सिनेरियो दोनों भी जगह पे सिवियरिटी हाई, प्रायोरिटी भी हाई। अभी देखिए फंक्शनैलिटी ब्रेक हो रही है, बट हम बाद में भी उसको फिक्स कर सकते हैं। सो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसमें हम लॉगिन कर पा रहे हैं, बट अबाउट अस में हेल्प सेक्शन में कहीं पे तो अगर हम क्लिक करते हैं ना, तो पर्टिकुलर लिंक ओपन नहीं होता, पेज सही से हमें पॉपुलेट नहीं होता, राइट। सो इन दैट सिचुएशन प्रायोरिटी कैन बी लो, बट इट इज इम्पैक्टिंग द business, right? So hence high priority, sorry, high severity, low priority. Similarly अभी low side पे देखते हैं severity. Severity low है, it means application की functionality break नहीं हो रही है, but high priority. Why? जल्दी से जल्दी क्यों फिक्स करना है? क्योंकि जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है, कलर में मिस्टेक्स है, टाइपिंग मिस्टेक्स है, वो आपके होम पेज पे है जहाँ पे सब यूजर आके विजिट कर सकते हैं, राइट। सो वो हमें टॉप प्रायोरिटी फिक्स करना है। दोनों भी जगह लो है, लाइक लो प्रायोरिटी लो सिवियरिटी, तो आपकी फंक्शनलिटी भी ब्रेक नहीं हो रही है, और जो भी आपके चेंजेस है, स्पेलिंग मिस्टेक, कलर में मिस्टेक्स है, अलाइनमेंट मिस्टेक्स है, वो कहीं पे तो कॉर्नर केसेस में है। सो इन दैट सिचुएशन सिवियरिटी एंड प्रायोरिटी शुड बी लो। क्लियर है? इसके आपको है ना मल्टीपल एग्जांपल्स मिल जाएंगे ऑन गूगल, जस्ट ट्राई टू पॉपुलेट एग्जांपल एंड नोटबुक में रेडी रखिए कुछ सैंपल एग्जांपल्स ड्यूरिंग इंटरव्यू बताने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैंने डॉक्यूमेंट किए सम ऑफ द, आप फिर भी रियल टाइम एग्जांपल्स पॉपुलेट कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे। ओके, ओके, फाइन, यस, ओके।
सी गाइस, जैसे हमने डिफेक्ट रिपोर्ट का जो टेम्पलेट देखा था उसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी देखी थी ना, उसी टेम्पलेट में से है ना और एक टर्मिनोलॉजी थी डिफेक्ट रिजोल्यूशन, राइट? हमने देखा था पॉइंट। हेलो, ओके। सी, एक लाइन देखी थी हमने डिफेक्ट रिजोल्यूशन। इसका सिंपल मीनिंग है, जो भी हम टेस्ट एग्जीक्यूशन करते हैं ड्यूरिंग दैट हम डिफेक्ट रेज करते हैं, मिसमैच अगर आता है तो, एंड पर्टिकुलर डिफेक्ट हम रेज करते हैं तो डिफेक्ट जाता है डेवलपर के पास, राइट? उन्होंने फिक्स कर दिया तो उसके ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस कोड होते हैं। ओके, वो स्टेटस कोड हम देखने वाले हैं, उसी को बेसिकली हम रिजोल्यूशन टाइप बोलते हैं। एक्सेप्ट, अगर आपके डेवलपर ने पर्टिकुलर आपने जो बग रेज किया था वो एक्सेप्ट किया। रिजेक्ट, पर्टिकुलर बग रिजेक्ट किया। डुप्लीकेट, आपने जो बग रेज किया ऑलरेडी किसी ने तो रेज किया था, हेंस इट इज डुप्लीकेट। एनहांसमेंट, जो भी मिसमैच, जो भी डिफेक्ट आपने रेज किया है वो एज ए एनहांसमेंट भी मार्क कर सकते हैं, मतलब आने वाले नेक्स्ट वर्जन में ये फंक्शनैलिटी करके आने वाली है, तो इन दैट सिचुएशन इट विल बी मार्क एज एनहांसमेंट। नीड मोर इंफॉर्मेशन, ये कब पुट अप करता है डेवलपर स्टेटस, कि जब जो भी आपने स्टेप्स दिए थे ना पर्टिकुलर बग को रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसमें उनके एंड पे रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो इन दैट सिचुएशन दे विल बी आस्किंग फॉर मोर इंफॉर्मेशन। नॉट रिप्रोड्यूसेबल, फिर भी डेवलपर एंड डेवलपर एंड पे अगर वो पर्टिकुलर सिनेरियो बग वहां पे उनको नहीं विजिबल होता सेम स्टेप फॉलो करने के बाद, तो उसी को हम बोलते हैं नॉन रिप्रोड्यूसेबल। ओके, सो लेटर ऑन जैसे हमने जो भी स्टेप्स दिए उसके हिसाब से पर्टिकुलर बग उनको भी विजिबल होता है और कोडिंग में चेंजेस करके वो लोग फिक्स कर देते हैं, राइट? सो दैट दैट स्टेटस चेंज टू फिक्स एंड एज डिजाइंड। ओके, एंड अगर कुछ बग्स ऐसे होते हैं ना जो एज पर डिजाइन ही होते हैं, उनमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं होते, सो इन दैट सिचुएशन इट इज मार्क एज पर द डिजाइन। ओके, फाइन। इसका है ना एक डायग्राम देख लेते हैं सो दैट ऑल स्टेटस कोड शुड बी क्लियर, लाइक विल हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग। एंड पर्टिकुलर ये जो लाइफ साइकिल है, जब हमने बग फाउंड किया, पर्टिकुलर बग हमने रेज किया, डेवलपर ने फिक्स किया, हमने रिटेस्ट किया, वापस से हमने उसका रिग्रेशन के टाइम भी हमने चेक किया। ओके, एंड हमें बग फिक्स मिला तो हमने उसको क्लोज कर दिया। इसी पूरे कंप्लीट साइकिल को बोलते हैं बग लाइफ साइकिल और डिफेक्ट लाइफ साइकिल। इसके डिफरेंट डिफरेंट जैसे फेजेस देखे ना, उसी का एक चार्ट डायग्राम है, यहाँ से थोड़ा और क्लियरिटी मिलेगी आपको। सी, जो भी हमारा टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज है वहां पे हम डिफेक्ट रेज करते हैं, मतलब हमें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो भी मिसमैच मिलता है दैट इज नथिंग बट योर बग और डिफेक्ट, राइट? तो इन द इनिशियल पीरियड इट्स स्टेटस शुड बी न्यू, क्योंकि अभी मिला है हमें, राइट? जैसे हमें मिलता है पर्टिकुलर बग तो हम आगे फॉरवर्ड करते हैं टू द टीम, जो भी रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। सो आपका जो भी प्रोजेक्ट डेव प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा, पर्टिकुलर जो भी आपका सीनियर बंदा रहेगा, इट ही विल बी एनालाइजिंग द पर्टिकुलर डिफेक्ट। अभी वो डिफेक्ट अगर वैलिड है, ओके, वो चेक करेंगे कि इट वेदर दैट डिफेक्ट इज वैलिड और नॉट। ओके, अगर पर्टिकुलर डिफेक्ट वैलिड है, ओके, तो ही आगे जाएगा, एल्स इट विल बी रिजेक्टेड। मतलब हमने जो बग रेज किया था ना, एट एक्चुअल बग है ही नहीं, राइट? हमने प्रॉपरली टेस्ट ही नहीं किया इन दैट सिनेरियो। ओके, सो उसके कई सारे रीजन होते हैं, तो वो रीजंस रिजेक्ट कब होता है कोई भी पर्टिकुलर डिफेक्ट, कि एनहांसमेंट फीचर है, हमें और डिटेल चाहिए इंफॉर्मेशन, राइट? डेवलपर के एंड पे वो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ जो भी पर्टिकुलर मैनेजर एनालिसिस कर रहा है उनके एंड पे वो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है, एंड एज डिजाइन, मतलब डिजाइन के हिसाब से वो फंक्शनैलिटी है, माइट बी यू थिंक कि वो ब्रेक है बट दैट इज द फंक्शनैलिटी। सो ड्यू टू दिस रीजन आपका बग क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। बट यस, इसमें से कुछ भी मतलब कोई भी चेंजेस नहीं है, आपने जो भी बग रेज किया है दैट इज अ वैलिड, वो आगे जाता है। यहाँ पे क्रॉस चेक होता है कि पर्टिकुलर बग एग्जिस्टिंग है क्या, मतलब ऑलरेडी हमारे सिस्टम में सिमिलर सॉर्ट ऑफ बग है क्या, अगर है, इफ इज देन दैट बग विल बी मार्क एज डुप्लीकेट, उसी बग को हम डुप्लीकेट मार्क कर देते हैं। अगर इन केस नहीं है देन ओनली इट इज प्रोसीड फर्दर। ओके, अगर वो पर्टिकुलर डिफेक्ट बग अगर डुप्लीकेट नहीं है तो आगे जाता है। देन अगेन
दे आर चेकिंग फॉर डिलीट, कि हम पर्टिकुलर बग को डिपेंडिंग अपॉन प्रायोरिटी हम इसको लाइक लेटर फिक्स कर सकते हैं या अभी फिक्स करने की जरूरत है। जैसे हमने प्रायोरिटी देखी थी हाई मीडियम लो, डिपेंडिंग अपॉन दैट वो डिसीजन लेते हैं पर्टिकुलर आपके जो भी टेस्ट लीड है टेस्ट मैनेजर्स है राइट, वो डिसीजन लेते हैं कि हमें इसको फिक्स करना है या नहीं करना राइट। कई बार है ना डेवलपर, मतलब आपकी टीम में अगर डेवलपर डिसीजन लेता है सीनियर डेवलपर, सो दे विल बी लुकिंग फॉर सेम। ओके, जैसे वो डिसीजन लेते हैं कि यस वी कैन फिक्स दिस लेटर, ओके, सो इन दिस सिचुएशन दिस बग पर्टिकुलर बग विल बी डिफर्ड राइट, मतलब उसका स्टेटस डिफर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर वो बग हमें फिक्स करने की जरूरत है, सो इन दैट सिचुएशन इट विल बी असाइन टू अ पर्टिकुलर डेवलपर को बग असाइन हो जाएगा राइट। जैसे ही डेवलपर को बग असाइन होता है ना, सो डेवलपर विल बी फिक्सिंग द बग राइट, डेवलपर स्टार्ट वर्क अपॉन दैट एंड ही विल बी फिक्सिंग द बग। ओके, जैसे ही पर्टिकुलर बग फिक्स होता है तो उसका स्टेटस वापस से ओपन होता है राइट। जे सॉरी यहाँ पे असाइन होता है, डेवलपर जैसे ही काम करना स्टार्ट करता है तो उसका स्टेटस ओपन होता है, एंड डेवलपर जैसे ही पर्टिकुलर बग को फिक्स करता है ना तो उसका स्टेटस मार्क करता है टू द फिक्स। ओके, जैसे ही कोई बग फिक्स होता है उसका नेक्स्ट वर्जन बिल्ड नंबर जनरेट होता है, एंड एज अ टेस्ट टीम विल बी परफॉर्मिंग रीटेस्टिंग राइट। अगर हमें टेस्टिंग में पर्टिकुलर बग पास होता है, मतलब फंक्शनलिटी में ब्रेकेज नहीं मिलता है, सो विल बी क्लोजिंग बग। ओके, इन केस फिर भी हमारी पर्टिकुलर टेस्ट केस फेल होती है तो वापस से हम उसका स्टेटस रीओपन कर देंगे एंड विल बी असाइनिंग टू द डेवलपर राइट, डेवलपर अगेन फिक्सिंग दैट एंड मार्किंग स्टेटस एज फिक्स। हम वापस से चेक करते हैं, अगर बग डिफेक्ट फिक्स हो गया तो विल बी क्लोजिंग, एल्स अगेन हम रीओपन करते हैं। लाइकवाइज ये साइकिल चलते रहता है। ओके, एंड जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर फेज में एक बग रेज किया था, वो अभी एज ऑफ नाउ तो रीटेस्टिंग में फिक्स हुआ, बट ड्यूरिंग रिग्रेशन अगर वो पर्टिकुलर बग वापस से रेज होता है तो अगेन विल बी रीओपनिंग द बग, अगेन असाइनिंग टू द डेवलपर अगेन फिक्सिंग, then again retesting. This cycle goes on until your bug is fixed right. So this is the complete life cycle journey for your bug. ओके, सो कहाँ से स्टार्ट होता है, जब हम टेस्टिंग करते हैं एंड ड्यूरिंग टेस्टिंग जो भी मिसमैच हमें फाउंड होता है तो यहाँ से हम रिपोर्ट करते हैं, उसका स्टेटस चेंज होता है टू द न्यू, उसी पर्टिकुलर बग का एनालिसिस होता है, बेस्ड ऑन दैट अगर वो वैलिड है तो ही आगे जाता है, else it will be rejected due to these reasons. If it is existing, then mark as duplicate. If no, then can we delay it depending upon priority, right? So if not, then only it is proceed further, else it will be deferred. Okay. Once it needs to be fixed, so it will be assigned to the particular developer keeping status as open, he is working upon that. Once he fix the bug, he will be marking status as fix. जैसे ही फिक्स होता है टेस्टर टेस्ट करेगा, एंड अगर टेस्ट केस पास होता है देन ओनली वी आर क्लोजिंग द बग। ओके, एंड इफ टेस्ट इज फेलिंग देन अगेन रीओपनिंग द बग, एंड दिस साइकिल गोज ऑन कंटिन्यू। ओके, एंड ड्यूरिंग रिग्रेशन एज वेल अगर हमें पर्टिकुलर बग फाउंड होता है तो अगेन वी आर रीओपनिंग द सेम एंड साइकिल गोज ऑन। Okay, going. Okay, so likewise guys, this is the complete life cycle for book. Any question here? जो भी हमने status देखे थे ना different वही status इसी pictorial diagram में आपको देखने के लिए मिलेंगे in orange color. What is deferred? Okay, hello.